Question number 17. If n equals to 2 cube into 3 की power 4 into 5 की power 4 into 7, number of consecutive zeros if n, where n is a natural number. So first of all I want to tell you, I have told you earlier also, when you are thinking about consecutive zeros, the consecutive zeros depend upon how many twos, and there is a combination of 2 and 5. There is a combination of 2 and 5, and the least combination is 3, is of 3. Here 3 2s are there and number of 5 are 4. Then the combination of 2 की power 3 and 5 की power 3. So therefore number of zeros will be 3. Number of zeros will be 3. Clear? This will be the answer. 3 is the answer. Next, move to question number 22. If the SCF of 65 and 117 expressible in the form 60m, first of all you take the SCF. What is that? 65, 13 into 5 and 117, 13 into 9. Clear? SCF is 13. You have to represent this equation 65m minus 117n equals to 13. Clear? Up you put the value here 1, 2, 3 or 4. 1, 2, 3 or 4, or the answer result is 13. Then what can be the value? Uh, 65 into 2 130. 65 into 2 130. ये exceed कर जाएगा. This value will be exceeded. 13 should be the answer. We have to put, then the value of m is 65m minus 117n. Then the value of m is, you are not having the value of both m and n. Then how can you do this question? You can divide 117 by 16. 117 by 65. That is 165. That is, what will be the remainder? 52. Here 1, 52, 13 will be the remainder. Clear? 13 will be the remainder. 52 into 1, 65 equals to 13 equals to 65 into 1 minus 117 minus 65 into 1. 13 equals to, this can be written as 65 13. देखो, very important question. We will do it again on the next page. Here, say LCM of 117 and 65 can be written in the form 100. What we can written in the form 65m minus 170n. m and n value are not given. M and n value are not given, and the SCF is 13. कैसे find out किया होगा? 65, the remainder is 52 and 65 and the remainder is 13. तो कैसे आया होगा? 65 into 1 plus 52, and this 65 equals to 52 into 1 plus 13, and 13 is the remainder. Clear? तो अभी कैसे 13 को कैसे लिखा होगा? 13 can be expressible as 65 minus 52 into 1. Clear? And 35. अब here 65 minus 117 minus 65 into 1 into minus 1. 65 minus 117 plus 65 plus 65. The remainder is 130 or this. तो अब देखिए what is happening here. 13 equals to 65 into 2 minus 117. So 65 m की value of m is 2 and the value of n equals to minus 1. Very important question, very important. So you have to follow the rules of Euclid division algorithm over here. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप इसको मगअप करेंगे, क्रैम करेंगे
कि आपने क्या है कि जो 52 जो है वो 52 को 117 उसकी फॉर्म में एक बार दोबारा ब्रेक किया और 117 उसकी फॉर्म में ब्रेक करने पर 13 आना था, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया -1, और -1 से क्या आ गया, प्लस का 1 हो गया, सो 130 माइनस 117 इक्वल्स टू ये हो गया। तो m की वैल्यू क्या हो गई 2 और n की वैल्यू बाय -1। ये 25th क्वेश्चन है, क्रैक NTSC आप देख रहे हैं, और NTSC स्कॉलर्स बुक का क्वेश्चन है ये, और अपन 15 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करें। 25th क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, तो a² BC क्यूब इक्वल्स टू 5 क्यूब एंड AB² इक्वल्स टू 5 क्यूब और 6, तो ABC की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड इनटू कर देते हैं, यानी a² BC क्यूब इंटू AB² इक्वल्स टू 5 की पावर 9, हियर व्हाट इज हैपनिंग, a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब इक्वल्स टू 5 की पावर 9, व्हाट इज हैपनिंग, ABC की होल पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 9, देन ABC इक्वल्स टू 5 की पावर 9 अपॉन 1/3, यानी ABC इक्वल्स टू 5 की पावर क्यूब, यानी कि 125 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हमें, 2012 इंटू 2013 इंटू 2014, इसको किससे डिवाइड करना है, 2011 से। तो देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 एंड दिस इज 3 एंड द रिमाइंडर इज 6 एंड 2011, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 6। क्वेश्चन है a अपॉन रूट a² प्लस b² की होल पावर x प्लस b अपॉन रूट a² प्लस b² की होल पावर x इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू 1 लाना है, 1 2 1/2 और नन ऑफ दीज ऑप्शन है। तो आप एक चीज़ समझे, ये हम इक्वल टू करने पर 1 आना चाहिए। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर कर दूं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a² प्लस b² आ जाएगा। समझें आप कैसे करना है, x की पावर आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ये a² आएगा, नीचे क्या आएगा a² प्लस b², यहाँ पर b² होगा और नीचे क्या आएगा a² प्लस b², तो ये a² प्लस b² से इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर क्या होगा 2। अब एक बार देख लीजिए कैसे कहा मैंने भाई, रूट a² प्लस b² का होल स्क्वायर कैसे होगा, a² प्लस b², और ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा a² प्लस b² आ जाएगा। क्लियर है? अब करते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करते हैं, इसका इंटू इधर करते हैं, 3x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, जो माइनस है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या आएगा 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब 2 की पावर 3x में से 3 की पावर x गया तो 3 की पावर x। क्लियर? अब देखिएगा कि ये क्या होता है, 3 अपॉन 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर x। क्लियर? तो अभी ये क्या होगा, 3 की पावर 3 इक्वल्स टू, अब इंटू करेंगे 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 2x, अल्टीमेटली 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विल बी द आंसर। क्लियर है? x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 28th, और क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ HCF ऑफ x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए एंड x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज x माइनस 4 एंड x माइनस 5, यानी कि x माइनस 4 x माइनस 5 HCF है। तो देखिए x माइनस 5 इधर आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 4 नहीं है, HCF का जो पॉइंट है वो नहीं है, तो मेरा ये कहना है यदि HCF होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x माइनस 4 फैक्टर होगा इसका, समझें आप, x माइनस 4 फैक्टर होगा इसका और x इक्वल्स टू 4 इसे सेटिस्फाई करेगा। व्हाट डज इट मीन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0, पुट वैल्यू ऑफ 4, पुट वैल्यू x इक्वल्स टू 4, तो ये क्या आया 16 माइनस एक्स 16 माइनस 4 माइनस ए, तो ये क्या आ गया a इक्वल्स टू आया 12। क्लियर? अब सिमिलरली x माइनस 4 यहाँ है तो x माइनस 5 नहीं है, तो x माइनस 5 x इक्वल्स टू 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 की जगह आप क्या लिख दें, x की जगह लिखेंगे x इक्वल्स टू 5, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6 कितना आएगा 25 माइनस 10 माइनस 6, यानी कितना आया 25 में से 16 आप यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी a इक्वल्स टू 12 एंड b इक्वल्स टू 9 विल बी द आंसर। कुछ गलती हमने कर दी, a इक्वल्स टू 12 और a इक्वल्स टू 12, b की जगह अपन कुछ गलती कर गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस b,
तो एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2x और माइनस b है, एक्चुअली ये b है, तो b, ये b है, तो ये b क्या आ जाएगा, b विल बी b इक्वल्स टू 25। तो आंसर हो गया a इक्वल्स टू 12 एंड b इक्वल्स टू 25। तो कैसे किया हमने, क्योंकि हमें पता था जो HCF जो है वो यदि ये फैक्टर होगा, इसका गारंटेड है, इसका फैक्टर होगा, यानी x माइनस 4 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन, x इक्वल्स टू 4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई का मीन्स क्या है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे और जीरो के इक्वल टू में इसको रिड्यूस कर देंगे, तो a इक्वल्स टू 12। हियर आप यू विल बी पुटिंग x इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी 25। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो a इक्वल्स टू 12 and the b equals to 20. Question number 30. If a equals to 3 plus 2 root 2 and b equals to 1 upon a, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि इनके दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस यदि 1 हो तो आप डायरेक्ट 1 upon a कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2, क्योंकि यहाँ 9 है 3 का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 upon a को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट मुझे करनी है, तो बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए आ चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होगा। तो ए प्लस बी का मतलब क्या, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी 6, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab तो क्या है, ए बी, तो इन दोनों का यदि इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1, 6 36 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 34 विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन।